भारत की आजादी के 77वें साल के मौके पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत पाटन जिले के सिद्धपुर में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यात्रा का प्रारंभ सिद्धपुर के LS हाई स्कूल से कैबिनेट मंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ कर किया गया। यह यात्रा ऑफिन गेट, अंबेडकर चौक, झांपली पोल, टावर रोड जैसे अन्य राजमार्गों से होती हुई गुजरी। इस यात्रा में पाटन सांसद भरत सिंह डाभी, जिला भाजपा प्रमुख दशरथ जी ठाकुर, पाटन जिला कलेक्टर, जिला पुलिस, जिला विकास अधिकारी, भाजपा के नेता, विद्यार्थी तथा पुलिस अधिकारी सहित 5000 लोग जुड़े और देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। समग्र विश्व में જ્યારે ભારતનો તિરંગો આજે લહેરાઈ રહ્યો છે, 75 વર્ષ આપણા દેશને આઝાદ થયા। આપણે જમાનામાં લાલ ઘઉં લાવીને ખાતા હતા, એ વખત આપણને આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ હતી અને આજે વિશ્વમાં આપણે 5મા સ્થાને પહોંચ્યા છીએ। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કીધું છે કે ટૂંક સમયની અંદર જ આપણે ત્રીજા સ્થાને પહોંચવાના છીએ અને 140 કરોડની જનતા, આખું ભારત એકમેક થઈને જ્યારે આગળ વધી રહ્યું હોય ત્યારે આજે પાટણ જિલ્લામાં સિદ્ધપુરમાં બધા જ પક્ષના ભાઈઓ, તમામ સ્કૂલના લોકો, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ, અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, સમગ્ર લોકોએ ખરેખર આ ગામની અંદર બધા ભેગા થઈને જબરજસ્ત 5000 થી વધારે માણસની જ્યારે રેલી નીકળતી હોય, આપણા રાષ્ટ્રનો ધ્વજ જ્યારે ફરકાતો હોય, 15મી ઓગસ્ટે ચોક્કસ ફરકાવવાનો છે, તો આપણને આજે એમ લાગે કે આવતા જતા તમામ લોકો આપણા રાષ્ટ્રને સેલ્યુટ કરીને જ્યારે ખરેખર અભિનંદન પાઠવતા હોય ત્યારે મને વાતનો આનંદ છે। જે લોકો જોડાણા છે અમને ખૂબ ખૂબ દિલથી શુભકામનાઓ પાઠવું છું। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई के मेवास इलाके के अकोटी गांव में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की जनसंख्या है। यहाँ नई माध्यमिक स्कूल बनाने की अनुमति विधायक शैलेश मेहता के प्रयासों से मिली है। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने यहाँ माध्यमिक स्कूल को अनुमति दे दी है, जिसका लाभ करीब 25 गांव के लोगों को मिलेगा। इस मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने खुशी जताई है। डभोई तालुकानो मेवास पट्टो, जेमां आर्थिक रीते 50 लोकोनी वस्ती वधारे छे अने ए मेवास पट्टामां कोई माध्यमिक शाळा न होवाथी अकोटी गामना खास करीने बारिया कम्युनिटी छे ए लोकोने शिक्षण माटे माध्यमिक शाळानी घणे वखतथी मांगणी हती। आ मांगणीने लागणीने अमारा मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल અને શિક્ષણ મંત્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરે ધ્યાનમાં રાખીને આજે માધ્યમિક શાળાની પરમિશન, સરકારી માધ્યમિક શાળાની પરમિશન અકોટી ગામમાં આપી છે। હું આપના મારફત ગુજરાત સરકારનો, મુખ્યમંત્રીશ્રીનો અને શિક્ષણ મંત્રીશ્રીનો આભાર માનું છું। સાથે સાથે જ અકોટી અને આજુબાજુના મેવાસ પટ્ટાના તમામ ગામના નાગરિકોને અભિનંદન આપું છું કે એમની જે લાગણી ને માંગણી છે એ પરિપૂર્ણ થઈ છે। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Metrology by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा शहर को यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी के रूप में स्थान दिलाने की कवायद टीम इंडिया और वडोदरा महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान से की गई है। गुजरात का वडोदरा शहर और हम सबका प्यारा और बेहद खूबसूरत वडोदरा शहर, जिसे आज भी लोग महाराजा सयाजीराव के नाम से जानते हैं। वडोदरा शहर को टीम वडोदरा पिछले कुछ वक्त से एक नए रंग रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं और उसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में वडोदरा को स्थान दिलवाने की कवायद हो रही है। उसी के तहत वडोदरा की होटल ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अग्रणी तो है ही, साथ ही जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के पूर्व मेयर
जुनेद अजीम मट्टू भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को क्रिएटिव सिटी में स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और उसी वर्कशॉप के तहत अलग अलग क्षेत्र के अग्रणियों के अलग अलग इंपॉर्टेंट सूचन लिए जा रहे हैं और वडोदरा को कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी और किस तरह से वडोदरा क्रिएटिव सिटी में स्थान पा सकता है, ये सारी कवायद आज वडोदरा शहर में हो रही है। वडोदरा सिटी को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिलाने के लिए टीम वडोदरा ने 1.5-2 साल पहले शहरीजनों के खास सूचन लिए थे और कॉरपोरेशन को अब सूचना दी है और उसी के तहत ये कवायद की जा रही है। वडोदरा शहर में हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा 129 जितनी हेरिटेज बिल्डिंग की सूची तैयार की गई है और हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा सभी हेरिटेज इमारतों के सुधार पर भी काम किया जाएगा। साथ ही वडोदरा की पहचान समान गरबा, गणेशोत्सव, नरसिंह जी की शोभा यात्रा जैसे उत्सव को भी इस खास मौके पर शामिल किया गया है ताकि क्रिएटिव सिटी के रूप में वडोदरा बेहतर तरीके से नोटिफाई कर सके और यूनेस्को में पार्टिसिपेट करने के बाद वडोदरा को भी क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिल सके। अब तक गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद को ही हेरिटेज का दर्जा मिला है और अब अगर वडोदरा को भी ये दर्जा मिलता है तो गुजरात की पहली क्रिएटिव सिटी वडोदरा शहर को माना जाएगा। ये कवायद गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल के साथ साथ वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री इत्यादि के प्रयासों के साथ किया जा रहा है। आज सब्जेक्ट है एना पर बधाए પોતપોતાના વ્યૂ રજૂ કર્યા છે, બધાએ પોતપોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે, પ્રેઝન્ટેશનો રજૂ થયા છે અને એના કારણે થઈ આ બધા પ્રેઝન્ટેશનો, આ બધા વ્યૂઝ, એમના મંતવ્યો, એમના સૂચનો એ બધું લઈ અને વડોદરામાં શું કરવું જોઈએ એની માટેનો એક રોડમેપ તૈયાર થાય, એક બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર થાય અને સાથોસાથ ક્રિએટિવ સિટીનો દરજ્જો મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ એની પણ એક ચર્ચા આમાં થઈ છે અને જે મુખ્ય સ્થાન આ કોન્ફરન્સનું હતું। એટલે આખો એક બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર થાય। હવે આ કલ્ચરલ સિટી અને ક્રિએટિવ સિટી માટે જમ્મુ કાશ્મીરથી પણ એક એક્સપર્ટ આવ્યા હતા, એમણે પણ અહીંયા એમની વાત મૂકી છે। એટલે આ બ્લુપ્રિન્ટના આધારે ફર્ધર પછી એના પર ડેલિબરેશન થઈ, એને પોલિસી ફ્રેમવર્કમાં ઢાળી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એ દિશામાં ચોક્કસ આગળની કાર્યવાહી થશે। એટલે આ સેમિનારથી વડોદરાની એક આગામી 10 વર્ષની કે વડોદરાને આપણે ક્યાં લઈ જવું છે, કયા દિશામાં, એની માટેનો એક બ્લુપ્રિન્ટ तैयार था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर यानी गुजरात का वडोदरा शहर और इस शहर की विरासत अपने आप में ऐतिहासिक है और इसीलिए वडोदरा शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में स्थान मिले ऐसी कोशिश हो रही है। टीम वडोदरा पिछले कई वक्त से वडोदरा को री इमेजिंग यानी वडोदरा को एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है और टीम वडोदरा की ही सूचना के आधार पर वडोदरा महानगर पालिका ने एक नई कवायद शुरू की है कि वडोदरा को क्रिएटिव सिटी के रूप में यूनेस्को में स्थान मिले। अगर ऐसा होता है तो वडोदरा बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब माना जाएगा और उसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। और आज इस कवायद में बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से एक खास मेहमान वडोदरा आए हैं जो पूर्व मेयर भी रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जुनेद अजीम मट्टू जी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट सूचन दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे वडोदरा क्रिएटिव सिटी में शामिल हो सकता है। सबसे पहले तो सर वडोदरा शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्रिएटिव सिटी, क्या पैमाने होते हैं सर यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी को स्थान दिलाने के? एक डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, बहुत सारे शहर इसमें कम्पीट करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूज़िक, गैस्ट्रोनॉमी, फूड, डिज़ाइन। वडोदरा ने जहाँ तक वडोदरा की बात है, उन्होंने डिज़ाइन में भाग लेने का फ़ैसला लिया है और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमने फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अप्लाई किया था और 2021 में हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई और अभी 11 क्रिएटिव सिटीज़ हैं, यूनेस्को सिटीज़ हैं पूरे देश में, 11 में से एक श्रीनगर। आप लोगों ने उस वक्त आपने कहा कि जैसे फोक और आर्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वैसे ही बहुत फोक और आर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, वडोदरा में क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? किस तरह से इसे क्रिएटिव सिटी में स्थान दिलाने में आप सहभागी बन पाएंगे? देखिए, वडोदरा का डिज़ाइन कॉम्पोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन, हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो लेगेसी है, आर्किटेक्चरल लेगेसी, और डिज़ाइन एक बहुत ही एक वाइड टर्म है। इट इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चरल डिज़ाइन अलोन, उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन इज़ ऑल एनकम्पसिंग। आपका यहाँ पे द डांस, द फेमस गरबा
in Vadodara, जो एपिसेंटर है वडोदरा उसका, that also fits the profile of creativity. तो वो शहर जो समझते हैं कि वो क्रिएटिविटी के हब हैं, वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होना चाहते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वडोदरा विल बी सक्सेसफुल. और जहाँ तक पर्सनली मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं बिल्कुल आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प वडोदरा. जो हमारी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहे हैं हम वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ. आई एम ऑल्सो शेयरिंग देम विद द हेरिटेज ट्रस्ट. और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकूँगा, मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा. वडोदरा एक बहुत खूबसूरत शहर है. मैं तीसरी बार वडोदरा आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वडोदरा का जो लेगेसी है, हेरिटेज कंपोनेंट है, जो इनहेरिटेंस इतनी रिच है, इट सर्टेनली डिजर्व्स अ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क टैग. मध्य प्रदेश के मंदसौर के युवक द्वारा इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अंगीकार करने का मामला सामने आया है. युवक का नाम पहले फैजान रिजवी था, जो अब अंगद सनातनी हो गया है. धर्म परिवर्तन करने वाला फैजान कई सालों से सनातन धर्म का अनुसरण कर रहा था. वो भगवान बालाजी का परम भक्त भी है. इसके बाद युवक को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, धागा बांधकर और मुंडवाए सिर पर गोबर का लेप लगाकर सहित तमाम प्रक्रिया के साथ धर्म परिवर्तन करवाया गया. आज मैंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाया है. आज से मेरा नाम अंगद सनातनी है. मेरी बहुत पहले से करीब 10-12 वर्ष पहले से ही मेरी हिंदू धर्म में आस्था थी. मैं बालाजी का भगत हूँ. हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, भजन माला का पाठ करता हूँ. और आज भी मेरी बहुत आस्था है हिंदुत्व में और हिंदू धर्म में. और मेरी जब मन हुआ कि अब मैं धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखता हूँ, तब मैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह जी राजपूत और मंदसौर जिले के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी गिलोत से मैंने संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, मेरी आस्था हिंदू धर्म में है. तब सब पूरा हिंदू युवा वाहिनी संगठन मेरे साथ खड़ा है और आज मैंने धर्म परिवर्तन किया है. और चैतन्य सिंह जी राजपूत और ईश्वर सिंह जी की मदद के अनुसार और पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत मैंने आज धर्म परिवर्तन किया और संपूर्ण आस्था के साथ मैं हिंदू धर्म को अपनाया है.